252 on the calendar in the matter of Blush Journey Watson versus Owens. Parties have been sworn in, Judge. You may be seated. Folks, have seats, please. Ms. Watson, would you step up, please? According to your complaint, you entered into a contract with the defendant to buy a home. That was about 4 years ago. Is that right? That is correct. And the agreement was that you would pay the mortgage on the house plus an additional amount each month. And when the mortgage was paid off, the house would be yours. That is correct, Your Honor. And according to you, you lived there as good renters to own for 4 years. And for no reason, the defendant locked you out of the house, took your property, and you are suing her for the property that she retains, that it belongs to you. Is that right? That is correct, Your Honor. The defendant says that you breached the contract that you entered into with her, and that she has your property, it is in storage, you can have your property back when you pay the storage fees. And she is counterclaiming for the storage fees that she's paid thus far and for damages that she alleges that you did to the house. Correct? Correct. When were you locked out of the house? The 10th of September, Your Honor. Tell me the circumstances, sir. How did you find out you were locked out of the house? My father-in-law, actually my stepfather, he was checking on the house as he normally does, Your Honor, and he noticed a locksmith. Where were you? I was at work at the time, Your Honor. Had you been living in the house? We had not. We had already moved at that point. Why did you move? We had moved because of the fact that for several months before we had moved, the defendant, Your Honor, had made it unbearable to live there. She was calling CPS on us. Child Protective Services. That is correct, Your Honor. Yes. She was in our business, making it to the point where we could not live there anymore. All three of you lived in the house? No, Your Honor. Who lived in the house? Me and the plaintiff right here, Afton Journey. And you have children? Yes, and my daughter, Dakota. When did you physically move out of the house? We physically moved out about a month prior to Give me the date, please. Date, year. June 24th of this year, Your Honor. And when did you ascertain that the locks had been changed in the house? That was on the 10th of September. Between June 24th, when you moved out of the house, and September 10th, had you paid the mortgage? Yes, we have, Your Honor. Had you paid her money, June, July, and August? We have, Your Honor, yes. Okay. Is there any dispute as to They that? didn't pay the portion to my contract. They paid the finance company the amount that was less than was due. The amount owed is $465. They were paying $450 and had been paying $450 for the 19 months prior to that. Okay. How much were you supposed to get each month? A minimum of $190 a month. The last payment I received is in May. You have any proof after May that you gave her the money that you were supposed to give? We were not able to obtain that, Your Honor, in time before this courtroom. No. Don't baloney me. If you have everything else, then you have that. I mean, your whole claim is that you did nothing wrong and she locked you out of the house. Is that right? That's correct. So don't give me baloney. So you did not pay her the $190 for June, July, and August. Is that right? Answer the question. We did, Your Honor. If I might interject, Your Honor, Leanna was getting $500 a month from us. Mm-hmm. And I do not think that she would dispute that, because at about... Just a minute, $500 a month including the mortgage? Absolutely, because... Just a minute. Well, $500 including the mortgage does not give her what you contractually agreed to give her. What you contractually agreed to give her was the mortgage plus $190 a month. So you weren't giving her what she was supposed to get, is my question. Yes, we were giving her... She came to me about 6 months ago and said that we were not making... The payments were like $465. I have an escrow on another house that was going directly to hers, which apparently was not enough. So she said that we were not paying enough. Don't try to confuse me. No. I'm not talking about the bank money. Whether you were $15 short over the course of 18 months is very possible. I'm talking about the $190 that you were supposed to give to her every month. And you're telling me that you gave it to her. Absolutely. Well, then you should be able to show me bank statements that show a check made out to her or a statement made out to her for $190 each month. You don't have that. No. So she had an absolute right to lock you out of the house. Period. You weren't paying pursuant to the contract. Now, when you locked them out of the house, what property was in the house that belonged to them? Your Honor, I have a videotape of what was in the property in the house at the time.
I object to this, Your Honor. Object to what? She could have taken out the property that was already there and then videotaped. She broke a window to get into our house. It was videotaped from the moment we entered the door, everything. I wish you could get this in smell-o-vision to get the full impact of this house. Nice front yard. Gee, wouldn't you like to be able to come home to this every day? This is actually better than it has been. Entrance in the house now. This is again the same date. That's what I went into. It's our house. Garbage. Well, clothes. One man's garbage is another man's, who knows, chair. The smell in here is just, oh. They never open their doors. 2 tables. Guess that's a way to do it. Just bring the dumpster in the house, huh? They got a cat a couple months ago and you can smell it. It's nauseating. It was There's a bad. love seat. I guess this is. Shut up. I guess this is how you store your valuable personal property. Not. There's a dresser, a love seat, 3 tables. Check it out. Hasn't been opened. Oh yeah, she always would order from those clubs and then not pay them. Might I add, Your Honor, that I filmed the window, everything, from the moment we broke the window to get in. It was all on tape prior to this. What property, Mr. Blush, do you say was in the house that she has? We had, I have a list of here. I'd like to take a look at it, sir. Yeah. Okay. By the way, when you moved out on June 24th, where did you go? We moved into a trailer, Your Honor, in Milton Freewater, Oregon. That you were renting? No. No, we were buying that as well. You bought it? Okay, how large a trailer? It's a single-wide, 2-bedroom. What did you leave clothes there for? Because we just left some of the clothes. It was our house, Your Honor. No, don't give me baloney. What? I asked you, what did you leave your clothes there for? Because there were just extra clothes we didn't need. We took what we needed. Right, for 2 months. When you move out 2 months, you take everything that you want, especially if you're moving into something that you buy. Real cases, real people. Judge Judy. Ron Blush, his fiancée Afton Journey, and his mother, Betty Watson, are suing Ron's cousin, Leanna Owens. The plaintiffs claim Leanna locked them out of their rented home. Leanna is countersuing, claiming Ron and Afton trashed the place. Sentimental keepsake collectibles. Irreplaceable. Like what? Knickknacks. Things that I had done in grade school that my mother had kept for me. Why didn't you take them? Because We moved into a smaller place, Your Honor, and could not take everything we owned at the time. And since how we were buying the house, and it was ours at the time, we did No, not it wasn't. take... You weren't paying for it. Yes. No, you weren't paying for it. All you paid was the mortgage. And you weren't paying her any money. Show me the proof that you paid the mortgage. Show me proof that you paid the mortgage. These are the ones that... No. Show me proof that you paid the mortgage June, July, and August. June, July, and August is what I want to see. you didn't bring that. Okay. There's one check. Check those, Your Honor. Yes. I think they're the very last ones. That's all. I just want to see June, July, and August. These are copies of your checks. Yes, and Okay. the other ones are that I was paying Leanna is from a different bank, and you know, I do have one of them. Would you show it to me? Absolutely. I have this one, Your Honor, because when she went to deposit it, I think she put it in her boyfriend's name or something, and they wouldn't take it because of the endorsement. And so on the back of it, I just had Leanna write where I just paid her This cash. is March 15th of the year 2000. Yes. I'm talking about June, July, and August of 2001. Yeah, you don't have them. Yeah, you're right. We don't have it. So what are you giving me this for? Well, I didn't What are you realize wasting what the my- date on that was. So what did you, when you looked at it, what did you hand it to me for? I Did you think I would look at it? Yeah, I knew you would look at All it, Your right. Honor. Nonsense. What stuff do you have in storage of theirs? I have a list of items that was in storage. Can I see it, please? Yes, ma'am. And I have Is this- photographs from the city Is prior it- to this. Just a second. Here's the receipt for the storage rental and the list of contents. Okay. Did you pack up the boxes? It says 14 boxes of miscellaneous papers. Yes, ma'am. You packed them. Yes, ma'am. They were on the floor, and I didn't throw anything away because who knows, they might want it. Okay. And how much is owed for storage? It's not that much. It's like $36.
Okay, and you have no objection to releasing this as soon as they pay you $36? No, ma'am, not at all. In Perfect. fact, my attorney gave their attorney the key Perfect. 27th. Good. So you get all the stuff that's back right in here. All you have to do is pay $36. Your Honor, I'd like case to is show over. you, Your part of the case is over. yes, ma'am. She packed up your junk. She put it in storage. It's all here, whatever you want. Because as far as I'm concerned, when people move out of a house for 2 months and they move into another house, then what they do is they take their most valuable stuff first. They take their precious pictures, they take their irreplaceable knickknacks, they take their computers, they take their jewelry, they take everything else. And the crap, they leave and they say, well, we'll come back and look through that stuff again. Maybe we'll want it, maybe we'll want it, but we don't want it. But you don't move into a 2-bedroom place and leave all your valuables behind. So that's crock. She's got your stuff. You can have all the stuff that's on this list. Now, I'm going to get to the counterclaim. Your Honor, if I may, this is from the storage unit. When they put our stuff in, there was no lock on the door. When we went to, her notice here, if you'll look at it, says the storage unit has the key. When we went there, he didn't have a key, and he said that he could cut the lock off because she did put it in our name. When we went there, there was no lock on it. If you could just look at this, you know, maybe. I'll look at anything you like. Yeah, What is this? that is what what Leanna gave Leanna us gave after us. she went Stole and, our stuff. Yeah, it's, We're not even tenants. no, I was a landlord for a lot of years. Just 1 and you second. All I'm asking you is about the storage unit. Is your stuff in storage or not? No, ma'am. There's No, it's nothing not. there. When I went there, that is the man that runs the storage unit. He said she left no key. To whom it may concern, there has never been a lock on mini storage unit 429 since it was rented. So, Well, I'm just telling you, what she took out of there never made it to the storage unit. you There's put it in the nothing storage there. unit? Yes, ma'am, I did. There Ginny was can no verify lock that. on it. did you go into the storage unit? Absolutely. The man went with me because he was going to unlock it. He was going to cut the lock off. When we got there was no lock on it. And when we opened it, when he raised it, there's nothing there, Your Honor. You know, what? Then I think you probably should sue him. She didn't put the lock on it, Your Yes, Honor. I think Yes, you She ma'am, I never did. locked it up. I think you probably should sue him. She never Not locked it. sue them. She has a contract. They said paid. They were paid in cash. If you think there was stuff in there that they failed to safeguard, sue them. You didn't pay her rent. After 2 months, she had perfect right to evict you and do whatever she wanted with the junk that you left behind. It wasn't You're suing her rent. for We were buyers, Your Honor. You're suing her for $5,000. You didn't have $5,000 worth of junk that you left behind. It's ridiculous. Let's move on to your counterclaim. How much should it cost you to clean up the house? I have an estimate from a local company to clean it. It's for $6,000 for just cleaning. First, would you like to see some pictures the city sent to me Yes. and the code violations outside the house that I had to clean up? No, she doesn't see that. She says it's a rental. It's not a rental. We got proof. I know. Is this a picture of your house? After she took all the stuff and threw it on the lawn, yes. Yes, yes. That stuff was in the house. Yes, it was. Yes. The city has that date at the bottom of that picture, ma'am. 829. 829 is, if I learned my math, is before September 10th, when somebody said that you found a lock off the house. And this is 9/4, September 4th. Who dated those? The city. Those are after we moved, Your Honor. We moved in June. Yeah. Oh, I understand that. And what you're telling me is you left all this valuable property in this very neat house that you left in June. We were there the day before she broke in, Your Honor, to Yes, we remove were. some property. My grandmother We'd went been with there. us. We were still moving out and trying to put stuff in storage as we went through it and get that place ready for a rental. We were going to rent it out, Your Honor. It's our house. Oh, no, it's not. It's not a rental, Your Honor. This is agreement for sale. I understand what you're saying, sir. It's an agreement for sale if you comply with the conditions of the contract. Conditions of the contract are that you pay the mortgage directly to the mortgage company, which you had not done because you were paying less than the mortgage each month. You were paying $450 according to the checks that you gave me. You were paying $450, and in addition, from the time you moved out until September, you have absolutely no proof that you paid her the $190 that you contracted for. So you breached the contract.
Okay. This is from the city of Walla Walla, Washington, I assume. Yes, ma'am. And it is dated August 31st of 2001. It's from the city that tells the owner of this property that they have to take care of the following things because they are in violation of city code. That is, weeds in yard 2 to 3 feet high, existence of junk, litter, and refuse, furniture and computer equipment on the sidewalk, planting strip area closed, cardboard, garbage cans, bottles, cords, fishing pole, plumbing fixtures, appliances, and it says that all junk and litter on the planting strip and sidewalk shall be removed by September 4th, and that you have to comply with the ordinance within 10 days of this letter. And if you fail to do it, carries a monetary penalty of $500 for each day the violations continue to exist. Judge Judy continues in a moment. So how much did it cost you to clean up the junk? So far, just to do the front yard and haul out probably... No, I want to see. Oh, here, I have that now. Show me. Plus the pictures taken after their stuff was removed. You're not going to get money for painting this house. You understand that? That's the big thing here. Because when somebody lives there 4 years, That's fine. you have to paint anyway. You want to sell it, you got to paint it. There was certainly a great deal of debris that I saw in the house and a great deal of cleaning. And probably it costs several $100s at least to clean up that mess. The carpets have to be removed. The odor is Oh, there's no question about that. How much carpeting is there? 417 square feet. Okay. Judgment of the court is as follows. On the counterclaim, I am awarding the defendant $2,500 for the purposes of cleaning up this mess, this disaster, and putting the house back in reasonable order, excluding the painting of the house, which you have to bear yourself. On the petitioner's claim, I am directing that the plaintiff may remove any and all property. Now the next case. All parties in the matter of Tarter versus Hughes. Step forward, please. Bus driver Catherine Tarter is suing her estranged son-in-law, 25-year-old salesman Donald Hughes, for the cost of a trailer. Donald says Catherine is angry about his pending divorce from her daughter. Miss Tarter, the defendant is your soon-to-be ex-son-in-law. And Yes. according to your complaint, he owes you some money for a trailer. Is that right? Yes. The defendant says he's paid you a substantial amount of money for the trailer, doesn't owe you any more. You have the motorhome that went with the trailer. He doesn't have it in his possession. It's not on his property. I assume this is your daughter? Yes. How long have you been married? 4 years, Your Honor. You have children? Yes, I do. How many children? I have a 1.5-year-old daughter, and then I had 2 sons that came with the marriage that are still dear to me. And who does that child live with? I have sole custody. Is that after a hearing, after a trial? Yes. Does their mother have visitation with the children? No, she does. She has 2 hours supervised visits a week. Does she exercise the visitation? Sometimes. Prior to the divorce, did you have a reasonable relationship with Mr. and Mrs. Tarter? Yes, I did. Is that right? Yes. How many children do you have? I have 2 girls. How many grandchildren do you have? 3. How much money was this trailer? It was $4,000 Just for the trailer? just for the trailer, and the motorhome was $4,000. So they agreed upon $8,000. And how much do you say it was, sir? It was $4,000 altogether for both of them. Is there a writing with regard to that? We had a verbal agreement. Is there a writing with regard to that, is my question. No. How much have you paid them for the trailer? I paid them $1,950 for the trailer and the motorhome together. But you only have the I only have the trailer. trailer. Did Mr. Hughes pay you $1,950? No, ma'am. How much did he pay you? The motorhome broke down. I'm not and talking about the motorhome. Okay, well, He doesn't have the motorhome. he paid us, I know, they returned it, so therefore all the payments that were paid individually towards the motorhome and the trailer were forfeited. And they were always... Forfeited by whom? By us. It was written down where when he paid us money, that $75 would go towards the motorhome and $75 would go towards the trailer. When one was given back in case they decided they couldn't afford it, or that
it broke down, which the motorhome did, and they couldn't afford to fix it. They gave it back to us. So therefore, the motorhome payments, which were $425, was forfeited, and then $425 was credited towards the utility trailer. All I'm asking you is that in writing someplace? I typed up a legal contract because Did he at first sign it? He refused to sign it. The answer is you do not. Shh. You do not have that in writing. Is that correct? My daughter signed it, and I don't he care did what your not. daughter signed, madam. I mean, I happen to think that you're missing a few screws, and I'm going to tell you why. You have a 1.5-year-old granddaughter. Your soon-to-be ex-son-in-law has sole custody, which suggests to me that if you want to maintain a relationship, and it seems to me you enjoyed a reasonable relationship with him before, if you want to enjoy a reasonable relationship with your granddaughter, you should keep him on your good side and not sue him, because it would appear to me that your daughter had to be a pretty deficient person in order to end up at the end of a custody dispute with 2 hours a week supervised visitation. Do we understand each other? Yes, ma'am. Why would a normal person who has 3 grandchildren risk the wrath of their custodial parent over nonsense? Over nonsense. He's paid your money. And how much child support is your daughter paying for her daughter? She's not, and they're not divorced yet. I don't care whether they're divorced or not. If she were the custodial parent and taking care of the child, and he came to me and said, in the course of a legal dispute, and I said to him, how much money are you paying for child support? And he said, well, we're not divorced yet, so I'm not paying for anything. I would wipe up the floor with him. Real cases, real people. Judge Judy. Catherine Tarter says her estranged son-in-law, Donald Hughes, owes for the cost of a trailer. Donald says his soon-to-be ex-wife is a drug addict. Now, I asked you a simple question. The simple question was, how much money was paid to you by him for either the trailer and or the motorhome? $425 for the trailer and $425 for the motorhome. Are you passive-aggressive? How much money was paid in total for both things? Just don't give me $425 for each. How much money do you say was paid in total? $850. Okay. And you say $1950. Yes, I do. Could you prove that to me? No, I can't. I have no receipts due to my house being taken from my wife, and then when I got my house back, I had no paperwork, no receipts, no pink slips. They say $850. What makes you think it was $1950? Because I paid on time, sometimes a couple days late, but every month was paid since October of 2002 until December of 2003. So far, is that right? No, Your Honor, I have a payment schedule here showing. They were to pay $26 for insurance. I'm not talking about insurance. I'm talking about how much money he actually paid to you. Okay. $1,450 is, by your calculations, what he paid to you. Not $850, $1,450, based upon this. Your Honor, those payments were divided up between the motorhome and the trailer equally. I just told you, he doesn't have the motorhome. You do. No, we've sold it since then. Well, that's not my problem. That's not his problem. Well, I asked him to return the motorhome when he refused the one payment and took it back. You took it back. Miss Tarter, you're not following me. If you think they owe you anything for the motorhome, get it from your daughter. Do I make myself clear? You are a very foolish lady. A very foolish lady. If I were in your position, I would not alienate the father, the custodial parent of my granddaughter. I would not alienate him. And for a very stupid reason, money. You did. This has been going on for over a year. No, that's not true. Because December of 2003, which is not over a year, he made a payment to you of $500. That's according to your own record. But we sold it to him on March 03, is when the trailer and the motorhome was sold to them. Did you hear what I said to you? It's not been going on for over a year. He made a payment to you of $500 in December of 2003. Yes, he caught it. When was the last time your daughter sent any money for the support of his child? March. That's not an issue. They're not divorced It's yet. an issue, madam, if you're using your brains. Judge Judy continues in a moment.
March of 2003. Was she employed? Yes, Your Honor. Where was she employed? At Child Time, Until when? October of 2003. And what did she do with her money? I thought she was paying bills, but she wasn't. She was using it on drugs. Was she placed in a rehab? I placed her in a rehab in January. Did she stay? She stayed for 60 days, Your Honor. And then she was supposed to go to a halfway house, and she ended up getting kicked out of there for doing it again, drinking. Where are her other two children? One lives with his father, and the other one lived with the grandparents. Ms. Tarter, I find that the defendant has paid you $1,450 for a trailer. I find that your agreement was $4,000 for the trailer. यहाँ वहाँ काम के तलाश में भटकता नहीं। अरे आराम से भाई, पुलिस के कंप्लेन मत करिया। हम तारा के वो काम बताओ तनी। तोहरा कोनो जरूरत हुई तो हमरा के याद करिया। रुको 1 मिनट। हमार विजिटिंग कार्ड रखा, फोन करिया। ठीक है? ठीक। लेकिन कंप्लेन मत करिया। जी। हैं? रुका, चलो तारा के छोड़ देता नहीं। ना ना, हम अपने आप चले। अच्छा अच्छा, ठीक बा। ध्यान रखिए। हे भगवान, बाल बाल बच गए नहीं। सगरो जहनवा जैसे ढूंढे माली फूल उजड़ल चमनवा जैसे ढूंढे माली फूल उजड़ल चमनवा तूफान ऐसन ले गइल उड़ाई जीवन की सारी खुशी गइल हो लुटाई आयल तूफान ऐसन ले गइल उड़ाई जीवन की सारी खुशी गइल हो लुटाई तन जाली राख होई जाली राख हुई उड़े आसमानवा ढूंढेल सूरज चंदा सगरो जहनवा ढूंढेल सूरज चंदा सगरो जहनवा लिखल विधाता भाग समझ नया वेला चंदा के जुदाई दिन रात तड़ पावेला लिखल विधाता भाग समझ नया वेला चंदा के जुदाई दिन रात तड़ पावेला कोई मिलान कैसे है कोई मिलान कैसे सुझे न जतनवा ढूंढेल सूरज चंदा सगरो जहनवा ढूंढेल सूरज चंदा सगरो जहनवा अरे तू आ गई ला का चोट कैसे लग गई? अरे वो गाड़ी से धक्का लग गया। बेटा बेटा
ज्यादा तो ना लगल है? ना। पता ना मुसीबत कब साथ छोड़ी। सही कहत बड़ू, लेकिन पता बा कभी कभी मुसीबत अच्छा होला। का मतलब? देखा जौन गाड़ी वाला से धक्का लगला वो हमरा के विजिटिंग कार्ड देले बा और बोल रहा जब भी तोरा की जरूरत लगी हमरा के कॉल कर लिया। चला एगो आस्था मिलल। सही बात बा, आज तो मिलल। सीधा एक काम कर, सर में दर्द होता, थोड़ा तेल लगा दा। ठीक है, तू लेटा, हम लगा देता नहीं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहा बचवा। आया था देखने, एक जन को देख चुका, सोचा है कि इसको भी देख लूं। ये तो बहुत अच्छा काम करनी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एगो बात कहिए। रउआ जौन दवाइया देहले बानी वो दवाइया से कोनो फर्के नहीं खे पड़त। कोनो बढ़िया दवाई देती कि जौने से कुछ फर्क पड़त। दवा तो ठीक है, बड़ा सदमा लग गया है, सुधार होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ जी कहीं ना डॉक्टर साहब। जहाँ ये डूब रही थी वहाँ ले जाइए, शायद कुछ याद आ जाए। ठीक कहता नहीं डॉक्टर साहब, ठीक कहता नहीं रउआ, हम सब रही लेके जाए। अच्छा पंडित जी, प्रणाम। यशस्वी भव। बहुत भूख लगल बा, खाना कई दिन से खइले नहीं खी, कुछ खाए के मिल जाई का? पैसा बात आ रहा लगे? पैसो नहीं खे। बिन पैसा कैसे खइबा? खाए खातिर त काम करे के पड़ी। रउरा जौन काम कहम तौन क देम हम। यहाँ काम उहे बा, बर्तन धोआ, साफ सफाई करे के पड़ी। हाँ हम करब। ठीक बा। अब बाबू जरा इनकरा के बर्तन वाली जगह दिखाओ, बर्तन धोओ इनकरा से। रूपवा तुहर सलोना लागेला चांद जैसन। दिल के ना कुछ खबर बा लागल
जैसन आवे ना हमरे निंदिया कैला ई जादू कैसन ला 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 ला। दिलवा के हमरे चुरा लिहले बाड़ू पागल दीवाना बना दिहले बाड़ू मंगिया में अपने सजा लिहल बानी आपन सजनवा बना लिहल बानी। बोले लू जान बोलिया कोयली के बान जैसन कार के सिया लागे बदरिया होठवा गुलाब जैसन बस में न बाटे मनवा कैला तू जादू कैसन। चाहिए तोहके जनमों से ज्यादा सनम कसम साथ रही वादा तू ही बड़ा हमरा दुनिया जहान हो हमरे ला भेजले बाड़े तू ही भगवान हो। बसेलू दिल में जान तू तो परान जैसन कार के सिया लागे बदरिया होठवा गुलाब जैसन रूपवा तोहर सलोना लागेला चांद जैसन आवे ना हमरे निंदिया कैला ई जादू कैसन। हम डूब जाए, हम डूब जाए। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। हे रविचंद, जल्दी से तोड़ के गंगा जल लाओ तो। हाँ हाँ, मुंह पे छिड़का।
पुजारी हैं और ये लोग हमार चेला हुए। तोहार नाव का हो? चंदा। तोहार घर कहाँ है? घर रामपुर। का? रामपुर? याददाश्त आ गई। बिटिया तोहार पति के का नाव हो? सूरज। सूरज और चंद्रा एगो लौकेला तो एगो छुप जाला। याददाश्त तोहर आ गइल बा, तू चिंता मत कर। बहुत बढ़िया, महादेव की कृपा भइल बा। हम तोहरा के तोहरा घरे पहुंचवा देब। ना ना ना, हम गाँव ना जाइब। गाँव नहीं खे जाइब? ना। लेकिन का है? भगवान जहाँ ले जा हम वहाँ जाइब। अरे कहाँ जाता लू? रुका रुका, तू कहीं न जेबू, तू एजा मंदिर में रहबू। हाँ बिटिया। ठीक बा, हम मंदिर में रहब, कहीं ना जाइब। रोवा मत, सब ठीक हो जाई, तू चिंता मत कर है बिटिया। देखा बेटी, चुप हो जा। तोहरा के रहे खातिर मंदिर में बहुत जगह बा। भोले बाबा के तोहरा ऊपर कृपा बा। अब तोहरा के चिंता करके कोनो जरूरत नहीं है। वो तो महादेव की कृपा भइले के तोहार याददाश्त वापस आ गइल। सुना रविचंद, तनिक यहाँ आवा, यहाँ आवा। तू इनकरा के गांव में जाके पता करा कि इनके यहाँ के बा। ठीक हो ना? ठीक हो, जा। चला बिटिया चला, तू हमारे साथ चला। तू गल रहा हो? सुनी। हाँ गई रहनी। सूरज के घर केने बा? घर में ताला बा। बहुत दिन से वो घर में केहू बा नहीं। ताला बंद बा। घर में क्यों नहीं? केहू नहीं खे। गुरुजी, हाँ घरे गए नहीं है। ओकरा घरे ताला लागल रहल है। गांव के लोग कहत रहल कि घर छोड़ के कहीं चल गए सन। का? घर में ताला लागल बा और ओकर घर में केहू नहीं खे? जी। अच्छा, का वजह हो सकेला? नहीं के समझ में आवत। ना गुरुजी। अच्छा, अब भोलेनाथ ही जाने की का बात बा। जी। दबाओ। जी गुरुजी। प्रेम, तो कि अब तक नौकरी न मिलल तो कैसे घर चली? तो कहल का चाहत बाड़ू? हम कोशिश नहीं करत। हम ई नहीं के कहत कि तू कोशिश नहीं खा करत। घर से जोन पैसा लेके आयल रानी वो खत्म हो गई। आगे की गुजारा कैसे चली? शिला एक काम करा, चैन के बेच दा। एक के बाद एक सबके सब सामान बिक गई और एक ही चैन बचल बा, और चैन के बाद तू हमके भी बेच दे बा। अरे तू कैसे उल्टा सीधा बात कर पड़ू? प्लीज हमरा खातिर नौकरी के बात करी ना। हाँ, अब हमारे रहते तू नौकरी करे जाइबू? जब तोके नौकरी मिल जाई तब हम छोड़ दे। बात करा ना एक बार प्लीज। प्लीज। ठीक बा, बात करते हैं। ठीक बा। हेलो। हेलो, सर मैं प्रेम बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ प्रेम बोला ना। उस दिन सर आपने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया था कि जब मेरी जरूरत लगे कॉल कर लेना। हाँ ठीक बा, लेकिन हमरा पास लड़की खातिर काम बा। सर मैंने भी लड़की के लिए कॉल किया है। ठीक बा, आके मिल ला। ओके सर, थैंक यू सो मच। का कर लिया? काल बुलौले बड़े।
का भइल चंदा? ए चंदा, का भइल बिटिया? पेट में बहुत दर्द होता का? अरे हम बानी नु बिटिया, तोहरा के सब करे के कौन जरूरत रहल? हम मना करत रहली लेकिन तू मनते नहीं खे। चला आराम से चलो, धीरे धीरे। संभाल के। तोहरा के सब काम करे के कौन जरूरत रहल? हाँ भिजवा दो उसको। हाँ हाँ हो जाएगा, आओ। हाँ ठीक है, ठीक। नमस्ते सर। अच्छा रखता हूँ, बात करता हूँ मैं। अरे आओ, बैठा। आओ बेटा। कहा प्रेम, का हलवा? सब आपका आशीर्वाद बा। अच्छा अच्छा, के बड़ी? सर इस शीला है। नमस्ते सर। तू दोनों के रिश्ता? सर हम दोनों दोस्त हैं। लागत है कि गांव से भाग के आए लोग। देखा हमरा बियर बार में सिर्फ लड़के के ही काम बा, जेंट्स के कोनो काम नहीं खे। बियर बार सर, दूसरा कोनो काम नहीं खे? अभी तो कुछ नहीं खे। ठीक है सर, हम सोच के बताइए आपके। सोच ला, लेकिन जल्दी सोच के बताइए, ना तो हम केहू और के रख लें। ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबू अच्छा 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 ओ ओ ओ ओ सो 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 आ ल ल ल ल नहीं 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 आ नहीं 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 आ अच्छा 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 चले 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 नहीं और अल्लू मुन्नो आए हाथ जोड़ो। जी गुरुजी। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम
सदा वसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। एगो बात बतावा बेटा, बड़ होके का बनबो? बड़ होके हम अपन पापा के खोजेम। अरे बेटा, हम ही पूछतानी, जब बड़हन हो जाइब तो का बनबो? बड़ होके हम पुलिस बने के पापा के खोज सकी। एगो बात बतावा ना जी। तोहरा ऐजा कौन चीज के कमी बा जे अपने पापा के खोजे खातिर इतना बेचैन रह तड़ा? सब लड़का के पापा बाड़े लेकिन हमार पापा नहीं खन। मजबूरी ना चंदा, माई हमर दूसर शादी करे के चाहती है। माई हमसे हमेशा कहेली कि वो हमरा जैसन दिखेले। अच्छा हाँ। चिंता मत कर, भोले बाबा की कृपा हो तो तोहार पापा मिल जाइए। सब लड़का आगे ले सा हम जाता नहीं खेले। खेले जेबा? हाँ। अच्छा जा, जल्दी से खेल के आ जाइयो। जी गुरुजी। जाता नहीं माई, संभल के जा। प्रेम कुछ समझ में नहीं के आवत कि का कल जाओ। सही बात पढ़ो, हमारो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करत। अब वो तू कहे तो हम नौकरी कर ले का? पागल हो गए बेड़ू का? बाहर में काम करबू, बाहर में काम करी। लेकिन वही जा और भी तो लड़की नौकरी करत हुई है ना प्रेम। हमने के पास और कोनो रास्ता नहीं के। जब तोरा के मंजूर बा तो ठीक बा, हम नगेश से बात करता नहीं। ठीक बा। चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। कबो अनादर ना करिहा, कबो अनादर ना करिहा, मात पिता भगवान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। न भुलैहा माई के दुख, कोख में जवन उठवली। अपने कोख के पलना बना के 9 महीना झूला झूलवली। फिर हमनी के जन्म मिलल, खुशियाँ नाही समैली।
अपने खून के दूध बनाई हम सब ही की पियवली। दूध खून के रिश्ता से ना है, दूध खून के रिश्ता से ना रिश्ता कोई महान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। हमने के दुख भइल माँ रक्त के आंसू बहवली। ठोकर खा के कहीं गिरले पर दौड़ के सदा उठवली। जबले हम सब खाना ले हरदम हमें मनावे हो। सबके खिलाई के माई फिर हमनी के जूठन खावे हो। माई करुणा के सागर माई करुणा के सागर जग जननी विधान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान हो। माता पिता के चरनिया जीवन स्वर्ग समान। अरे गुरु का लड़की भी है यार। क्या बात है? तो हर चमला
बैठा। ठीक बा। तू बैठा, हम मिल के आवतनी। ठीक बा। ठीक बा। नमस्ते सर। आवा प्रेम, आवा आवा बैठा। तो का सोचला? सर शीला तैयार बटी जॉब खातिर। ठीक बा, लेकिन 24 घंटा की ड्यूटी रही, लेकिन हाँ ओवर टाइम करे के होई। यहाँ रहना, काम करना, 24 घंटे की ड्यूटी। हाँ, और पैसा जौन तू चाह वो तो के मिली, कभी काम करे के जरूरते ना पड़ी। सर हम कुछ समझ ली ना। देखा, शीला जैसन लड़कियन के पैसा होखेला। ओह, समझ गेली। हाँ, एक बात सुन ले, आप ये कह चाहता नहीं ना कि हम शीला के धोखा दी? आप एक नंबर का घटिया इंसान बाड़ी। आप कहल का चाहत बानी? आप चाहते हैं कि शीला का साथे धोखा करी, विश्वासघात करी? माफ करी हमके। अरे अरे प्रेम, खिसियात काहे बड़ा? बैठा, तू बहुत भोला बड़ा हो। अरे जवान लड़की बचपन से लेके जवानी तक अपना माँ बाप और परिवार के साथ में रह के उनकरा साथे विश्वासघात क के तोहरा साथे भाग गई। अरे भोलेनाथ, का गारंटी बा कि ई तरह के छोड़ के ना जाई? अरे पैसा रहेला ना तो 1000 गो लड़की आई, समझला? सोचा, ठीक से सोचा। सही कहा था, जौन लड़की अपन घर परिवार का ना भइल वो हमार का हुई। बात तो सही बा, लेकिन शीला के रहे तो हो गई। तारा दिमाग में काहे नहीं के घुसत? वो कहावत सुन ले होकबा, का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गल खेत। अरे ये पेपर ले ला और इस शीला के साइन करा ला और पैसा से ऐस करा, ऐस, बुझला? ज्यादा सोचा मत। ये लो, पढ़ लो। जी ठीक बा। का भाई? कुछ ना, ये पेपर पे साइन कर दा। इमे का लिखल बा? का लिखल हुई? नौकरी के नियम कानून। ये हमरी खातिर भगवान हो गईले ना तो। जानत बड़ू, 24 घंटा का ड्यूटी बा। इंजे रहे के बा, इंजे खाए के बा, इंजे सुते के बा। ये का कहा था वा? हम तोरा से दूर ना रह पाई। तू ही कहलू ना कि हम भी हर बार में काम करब, तो कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ेला। यहाँ तो आरा के कोनो तकलीफ ना हुई। हम समझत हई, लेकिन हम तोरा से दूर ना रह पाई। हम बीच बीच में तोरा से मिले अवल करत रहा। देखा, तू कोनो बात का टेंशन मत लिया। ठीक बा। हो गई साइन। ठीक बा, पेपर लेके आओ तुम्हारी। पीता हूँ किसी की जुदाई में, उसका गम भुलाने के लिए, बेवफा की बेवफाई से अपनी हस्ती मिटाने के लिए। गई शराफत से तिरछी नजर वाली, चेहरे से भोली भाली काली जुल्फों वाली। हाँ,
लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, चेहरे से भोली भाली काली जुल्फों वाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, चेहरे से भोली भाली काली जुल्फों वाली, काली जुल्फों वाली। हुस्न की हसीनों का जब हुस्न होता है, चेहरा मासूम नजाकत दिल में होता है। हुस्न की हसीनों का जब हुस्न होता है, चेहरा मासूम नजाकत दिल में होता है। मधुभरी निगाह में नशा शराबी होता है, इन्हें चाहने वाला किस्मत पे रोता है। दिल में लिए आग, हाँ दिल में लिए आग, होठों पे होठ लाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, हाँ लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली। आशिकों को मोह लेती अपनी हर अदाओं से, फिर जुदा कर देती आशिकों को अपनी राहों से। आशिकों को मोह लेती अपनी हर अदाओं से, फिर जुदा कर देती आशिकों को अपनी राहों से। आशिकों की जान रहती जिसका इन्हें गम नहीं, तन्हा करके जिंदगी ये कहती दोषी हम नहीं। अपने चाहने वालों को, अपने चाहने वालों को इश्क में मरने वाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, हाँ लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली। इनके अंदर आशिकों का हाल बुरा होता है, गुमनाम हो के वो तन्हाइयों में रोता है। इनके लुटे आशिकों का हाल बुरा होता है, गुमनाम हो के वो तन्हाइयों में रोता है। गुजरे हुए लम्हे जब कभी भी याद आते हैं, हम बुलाने के लिए मैं खाने कदम जाते हैं। शराब की हर घूंट, शराब की हर घूंट घुट के मारने वाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, हाँ लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, हाँ लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली। लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली, हाँ लुट गई शराफत से तिरछी नजरों वाली। चच्चा एगो सिगरेट पियावा। हाइला हेलो सर, मैंने आपका ऐड देखा था, मुझे फिल्म में हीरोइन बनना है। सर, बचपन से मेरा बहुत शौक था कि मैं हीरोइन बनूं, फिल्मों में काम करूं। जी जी सर। सर, अगर आप कहे तो मैं आके ऑडिशन दे दूं? एक काम करो, अपना फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है सर, मैं अभी भेजती हूँ। और मेरे सर कुछ ऑडिशंस लिंक भी है, वो भी भेजती हूँ आपको। ओके। प्रेम के फोन करा तारू। हाँ। प्रेम के फोन कबो ना लगी। ई का कहा तारा? का मतलब? प्रेम प्रेम तोहर सौदा करके चल गई। हाँ, प्रेम प्रेम ना हा, सौदागर हा सौदागर। और ये अब सिर्फ और सिर्फ तोहार रिश्ता हमरा से रही, हमरा से। छोड़ो छोड़ो हमरा के, छोड़ो छोड़ो।
हेलो। हेलो, मैंने आपका फोटो देखा। हाँ जी सर। अच्छा लगा। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, वहां जाओ। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है सर। हे भगवान, हमार सूरज से मिला था भगवान, सूरज से मिला था। सूरज से मिलवा दा। हे भगवान, अपन आंचल फैला के तोरा से भीख मांगता दी, हमार सूरज के लौटा दी भगवान। बहुत तकलीफ होता सूरज के बगैर, लौटा दी हे भगवान। माई, इ तिरंगा झंडा के 3 रंग के मतलब का होला? तिरंगा केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान के प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का है। हरा रंग हरियाली और गौरव के, और अशोक चक्र सत्यमेव जयते के प्रतीक है। समझ में आ गई? माई, तोरा के तो सब मालूम बा। अब हम तिरंगा झंडा पर कविता लिख के स्कूल में सबके सुनाई। ठीक है, अब लिखा चलो। हाँ माई, ये देखा लिखा था। लिखा था।
का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का। आओ हम सब नमन करें, आओ हम सब नमन करें अपने देश किसान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। केसरिया बलिदान त्याग साहस एकता दर्शाता है, सफेद सुख शांति सच्चाई ईमानदारी सिखलाता है। केसरिया बलिदान त्याग साहस एकता दर्शाता है, सफेद सुख शांति सच्चाई ईमानदारी सिखलाता है। हरा रंग हरियाली गौरव, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। अशोक चक्र धर्म चक्र सत्यमेव जयते कहलाता है, सब धर्म मिल के संग रहना एकता प्रेम सिखलाता है। अशोक चक्र धर्म चक्र सत्यमेव जयते कहलाता है, सब धर्म मिल के संग रहना एकता प्रेम सिखलाता है। आन बान और शान तिरंगा, आन बान और शान तिरंगा जन जन के स्वाभिमान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। गगन लहराए तिरंगा दिख मन हर्षित होता है, भारत माँ के चरणों में सबका शीश झुक जाता है। नील गगन लहराए तिरंगा दिख मन हर्षित होता है, भारत माँ के चरणों में सबका शीश झुक जाता है। जय जवान जय जय किसान, जय जवान जय जय किसान, जय भारत विज्ञान का, तीन रंग का प्यारा झंडा ये है हिंदुस्तान का। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। पहले अंदर चला बैग ऊपर रखाई बा ये बड़ा फ्रेम, पहाड़ों के बीच कैमरा लगेगा और परियों की तरफ तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। यस चलो बेटा। आराम से बैठी हो ना? क्या बात हो गई सर?
कि आज तुम बस में बैठी हो, कल तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठोगी, मर्सिडीज, जैगुआर, BMW में घूमोगी। और पता है लोग क्या कहेंगे? वो देखो पूजा जा रही है, मेरे साथ बस में बैठी थी और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रही है। सब कुछ। और पता है जीवन में ऐसा होना बहुत जरूरी है। जब एक तरफ बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में पूछा जाता है तो बोलता है कि मैं सड़कों पे सोया, भूखे रहा, कोसों मील तक पैदल ही चला और चलता ही रहा ताकि पब्लिक उनसे जुड़ी रहे, कनेक्ट रहे। जब भी किसी बड़े बड़े एक्टरों का आप इंटरव्यू देखोगे, उस इंटरव्यू में आपको उन्हें अपनी जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, सुख है, दुख है, सारी चीज व्यक्त करते हैं, बताते हैं और फिर पब्लिक उनसे जुड़ी रहती है। ड्राइवर यही रुक दो, हम लोग का स्टॉप आ गया, चलो। चलो। प्रेम, कहाँ लेके जाता हुआ है कि? तू क्या होगा रास्ता के वाला? हाँ? हमरा के नहीं पहचाना, हमारी जिंदगी बर्बाद करके अब हम तोहरा के दूसरा जिंदगी बर्बाद ना करे दे। आपका नाम प्रेम है? आपने तो मुझे दीपक बताया था। पागल कुछ भी बोल रही है। हाँ प्रेम, पागल रहनी तभी तोहरा पे विश्वास कर बैठनी। प्रेम, ये हम आखिरी बार कहा था, छोड़ा एक हाथ। ऐसा लगा था तो रिश्तेदार ही है। हाँ, ये समझा। ओकर हाथ छोड़ा प्रेम। ये पागल के छोड़, चल। ये सब तो सही है, पहले ये बताओ ये कौन है? अगर ये कोई नहीं है तो तुम्हारे बारे में इतना कैसे जानती है? तुम भी पागल की बात में आ गई। ट्रेन में काम करना है कि तुमको? हाँ ये सब तो ठीक है, पहले सच क्या है बताओ। अरे सच ई का बताई है? सच हम बताई, हम इनकरा से प्यार कैनी और ई पैसा से प्यार कैले और हमार सौदा कर देलस और आज ही तोहार सौदा करे जाता रहा। क्या ये सच कह रही है? तुम भी यहाँ आके पागल हो गई हो। चलो चलो यहाँ से। प्रेम रुक जा, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। प्रेम ए जी गाड़ी रोकी ना, तो सूरज लग रहा है। अरे सूरज बेटा तुम। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते मौसी। यहाँ कहाँ? यहाँ कैसे घूम रहे हो? चंदा घर छोड़ के चल गई। क्या क्या? मुझे तुमने बताया ही नहीं। सूरज बेटा ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें बताना चाहिए था। मौके ना मिला, आप लोग के बताएं। अरे हाँ हेलो। हाँ बेटा। क्या ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? चलो मैं अभी आता हूँ। चलो मैं रखता हूँ। क्या हुआ जी? पूजा का फोन है, उसने हमें अर्जेंट बुलाया है। कहाँ पे? अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा ना। चलो सूरज बेटा हमारे साथ आओ। ना ना ना। चलो ना बेटा। आओ चलो चलो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं दरोगा जी? बढ़िया सर। क्या हुआ? ठाकुर साहब, हमने इन लोगों को 2 लड़कों की मारपीट हो रही थी, उसमें एक लड़के का सर फट गया है। अच्छा। और वो बहुत सीरियस है और ये दोनों हमको वहीं मिली थी।
इसलिए हम दोनों को लेकर आए हैं। ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। आपको इतना खबर होना चाहिए कि हमारे घर की लड़कियां कहाँ घूम रही है और कैसे संस्कार में जी रही हैं। इतना नॉलेज होना चाहिए आपको, लेकिन आप लोग इस पे ध्यान देते नहीं हैं। हुआ क्या है? आज वो लड़की नहीं होती तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था मतलब? आपकी बेटी आपको सब बता देगी। दरोगा जी, हम उस लड़की से मिल सकते हैं क्या? निकालो उसको, लड़की को। जी चलिए, अब आ रही है। अरे शीला, तुम? तो क्या आप इसे जानती हो? अरे जानते हैं, ये सूरज की बहन है। हमार कोनो बहन नहीं खे, एगो रहल वो मर गई। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? भैया सही कहा था वे। जौन माई के ममता और भाई के राखी के अपमान कैले हुए, वो बहन कहलाए के लायक नहीं खे। जवानी के जोश में हम अनरहा गईल रानी, परिवार के पराया और पराये के अपना समझ बैठनी। हमरा के माफ कर दा मौसी। हम कौन होते तुम्हें माफ करने वाले? तुमने तो बेटा वो काम किया है हमारी बेटी की जान बचाकर और इज्जत बचाकर। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमरा वजह से जो तू लोगन के अपमान भइल बा, हम माफी के लायक नहीं खी। फिर भी हम रउआ लोगन से माफी मांगता नहीं। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? माफी मांगना ही है ना तो अपने माँ और भाई से मांगिए। तो क्या करना है इन लोगों का बताइए? बाकी क्या करना है तो आप ही जानते हैं। गाड़ी में लड़की को बैठाओ। चलिए मैडम, गाड़ी में बैठाओ। चलो पूजा, इसको लेके जाइए आराम से घर और समझाइए। मौसी तू लो जा चलो, लो, बैठो। हमरा चंदा के खोजे जाए के बा। एक मिनट। अरे फेंक हाँ, आउट करिए। अरे ठीक से देना बाउल। अरे हे बाबू क्यों कुछ झूरा ले जात देख लो वो का यहाँ से। ना देखनी। तू देख लो वो का हो। ना हम ना देखनी हो। चलो मैं हो। हाँ ये 6। अरे ये झोला अंकल खोजत रहले ना। माई ये झोला ला। ई छोरा तोरा के कहाँ से मिलल? एकरा के एगो आदमी खोजत रहे। कौन आदमी? तू उनकरा के देखला हा का? पता ना के रहे। माई बहुत जोर के भूख लागल बा। माई एगो आदमी रहे, उहे ही झोला के खोजत रहे। ई झोला था सूरज के लागता।
के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। दुखिया के दुख हर लो, दुखिया के दुख हर लो, आईनी तुम्हारे द्वारे। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। घेरल बाटे जीवन की नैया, कैसे किनारा कस्ती पाई बिन खेवैया। तूफान में घिरल बाटे जीवन की नैया, कैसे किनारा कस्ती पाई बिन खेवैया। बिन पतवार नैया तू ही खेवनहारी। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। चारों ओर देखी कहीं दिखे ना किनरवा, अनाथ के नाथ देव तुहरे हो सहरवा। चारों ओर देखी कहीं दिखे नाथी नरवा, अनाथ के नाथ देव तोहरे हो सहरवा। जियरा तीर धारे, जियर बाटो सवारी। हे जग के पालनहारी सुन बिनती हमारी। हे जग के पालनहारी सुनो बिनती हमारी। श्री राधा कृष्णा की परसा ले हाँ चंदा चंदा सूरज
माई चंदा माई चंदा बिटिया क्या हो गई? चंदा बिटिया ए चंदा का भइल? चंदा आँख खोलो ना चंदा ए खोलो ना ए बाबू एक गिलास पानी ले आओ ना। हाँ ले आओ बता का भइल बिटिया के ला मुंह पे पानी छिड़को। सूरज सूरज परिवार बाल बच्चे सब ठीक हुए। बच्चा कैसन बच्चा? अरे तोके पता बा तू जाना चाहता रू। अरे तोके कहाँ ना खोजनी, जहाँ हमके लागल तू बेटा जेबू वही जगह हम खोजनी। अरे शहर गांव हर गली हर जगह खोजनी तोके। और तू हमरे के छोड़ के चली गई। अम्मा कैसे नहीं? अम्मा जी ठीक तो बाड़ी ना? ओकरी वजह से तू हर दासा ई भइल। अभी ले ओकरा बारे में तू पूछा तारू, हमरा पता नहीं क्या कहाँ बिया। बाबू यहाँ आवा। और बेटा बेटा हमार बेटा 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 ई तो पापा हवे। पापा बेटा आज आपके हमारे परिवार मिल गई। तू आपके सब कुछ दे दलू, हमार बेटा हुए ये सब आपका सपना जैसा लगा था। पापा अब हमनी के छोड़ के कबो ना जाइबा? ना कबो ना बेटा हमार। अरे हमार लाल तू लोग के मिल गए लौट, सारा दुख तकलीफ दूर हो गई। चलो चलो अपन करे चलो जा। कबो ना जाए अब हम घर में कबो ना जाए। यही से अब तू लोग के अब बबुआ के लेवे आइल बनी। अरे ये तो बहुत खुशी के बात बा। भगवान के कृपा भइल, चंदा के सूरज मिल गइल। अरे तू लोगन के देख के हमार मन बहुत खुश हो गइल। हमनी के तोहरे इंतजार रहल। ए लीजिए खाना और ये पानी। बेटा ला ये बैग ले लो। ला ऐसे। अरे प्रणाम माई। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम पापा। अनिल जी हो गए, पारकर जी हो गए और अमरेश जी हो गए। सूरज को भी फोन लगा दें क्या? खुश हो जाएगा सुन के। हाँ आप ऐसा कीजिए, एक फोन सूरज को लगाइए। ठीक है। और उसे बताइए कि घर में शादी है। हाँ उसे भी बुला लीजिए। ठीक ठीक है। ला बिटिया आरती लो। हेलो हेलो क्या बोला था? अच्छा सूरज से दे तानी। ला तोरा मौसी के फोन। मौसी? ला बिटिया आरती थाली। अच्छा मौसी, मौसी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा तुम्हारा झोला मिल गया? हाँ झोलवा भी मिल गई। और जो चंदन बाटे ना वो हमारा बेटा हुए। अच्छा चंदन तुम्हारा बेटा है? हाँ मौसी। बहुत खुशी हुई सुनकर। हाँ मौसी,
हमू बहुत खुश बनी। आज हमार पूरा परिवार मिल गई। सूरज, तुमको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे। अरे खुशखबरी है, सुनाओ ना। सब क्योंकि अच्छा लगेला, हमरो अच्छा लगी, सुनाओ ना। शीला को जमानत मिल गई है। का? क्या तुम उससे मिलने आओगे? कहाँ मिले आई जब भाई बहन के रिश्ते ही खत्म कर दलस और रिश्ता के अपमान कैलस। अपमान तो बेटा सबका, हम सबका हुआ है। हम भूल गए, अब तुम भी भूल जाओ। ना मौसी, तू भुला सकेलू लेकिन हम ना भुलाई। देखो बेटा, शीला के माँ बाप अब तुम ही हो। और हम अपने बेटे की शादी शीला से करवाना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है बेटा? मौसी, ई क्या कहा तारू? तू जाना तारू ना सिलवा के बारे में? हाँ बेटा, शीला पूरी तरह से बदल गई है। उसे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। ठीक बा मौसी, जैसन तो के अच्छा लगा था वैसन करा। बेटा, अपनी नाराजगी भूलकर शीला और मानव की शादी के लिए तुम सबको आना ही होगा। ना मौसी, ई ना हो सकेला, हम ना आए। हमरा के माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम इनकी शादी के बाद हम इनको मंदिर भेज देंगे, तो आप वहीं आशीर्वाद दे दीजिएगा। ठीक है? ठीक बा, जैसन तू चाह। प्रणाम। खुश रहो बेटा। मौसी का कहत रहे? वो है सिलवा के जमानत मिल गई और मानव से शादी करे के कहती है। रउआ का सोचत हई? पूछू ना, सोचे के का बा? वो करत रही तो हमनी के कौन एतराज बा? सही कहत हई, लेकिन हम शादी में ना जाए। ओकरा वजह से जौन भइल वो अपमान के भुला ना सकेली। ऐसन काहे कहतानी? ये सब छोड़ो, चलो अपना घरे। काहे से कि माई बहुत परेशान हुई, बाकी सब भूल जा। ना सूरज, हम ना भुला पाई, ना जाए। काहे? ना, बस अभी घर छोड़ के हम ना जाए, कबो ना जाए। ठीक बचंदा, यदि तू नहीं चाहत तो वह होगी। तू नहीं जाए के चाहत तो मत जा, लेकिन हम तोहरा के कबहू अपना से दूर होके देवे के नहीं चाहत। भैया, ये क्या है? हमके माफ कर दी भैया, हमके माफ कर दे भैया। भैया, भैया या भागन बहन के माफ कर दी भैया। भाई के प्यार, भाई की ममता, भाभी के दुलार सब भुला गई नहीं हम। परिवार के परिवार ना समझनी, हमके माफ कर दी भैया। अपना भागन बहन के माफ कर दी भैया। चुप कर पागल, हमेशा रोइबे करबे का। ई हमार बहन, अब वो हमार बहनोई। अच्छा अच्छा, खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। सूरज, आज तो हार बहन बहनोई मिल गए, बड़ा खुशी की बात बा। का नाम है बाबू? मानव। मानव, वाह। तू एक बेसहारा के सहारा दे के अपना नाव के सार्थक को देला, समाज में पेंगड़ा के मिसाल बन गईलो। याद रहे, कर भला तो हो भला। खूब खुश रहा लोगन, हमारा आशीर्वाद बा। शीला, हम तोरा भाभी के बुलाओ तनी। चंदा, हाँ ए जी। चंदा, आई।
भाभी हमरा के माफ कर दी। खुश रह। ना शीला। हमरा के माफ कर दी भाभी। हो सके तो हमके माफ कर दी भाभी। ना रो मत शीला। हमरा वजह से आप लोगों के बहुत दुख झेले के पड़ल। ना रो मत। ना शीला, तोरा से कोनो शिकायत नहीं खे। हम तोरा से उतना ही प्यार करीले जितना पहले करत रही। चुप हो जा। माई, ये दादी आई जी हमके रास्ता में मिलल रहली। सूरज, अम्मा जी, हमार सूरज, हमार सूरज, सूरज, हमार कहाँ चल गई रहल हमरा के छोड़ के बेटा। सूरज, तो के खोजत खोजत हम पागल हो गई नी। आँखें तरस गई तुम्हारा के देख के खातिर। कहाँ कहाँ ना ढूंढनी, तू हमके छोड़ के चल गई ना जाने कहाँ। हमार बेटा। अम्मा जी, ना ऐसा मत करिए अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी, तोरा ऊपर हम बहुत अत्याचार करेंगे। अम्मा जी, माई की जगह बेटी के पैर में ना होला, ओकर दिल में होला। ना बहू, हमरा वजह से हमार परिवार टूट गई, बिखर गई। हमरा के माफ कर दे। बस अम्मा जी। बहू खुश रह, बहू। माफ कर दी हमरा के माई, माफ कर दी हमरा के। ऐसे लवा, उठा बेटी, उठा। हम प्यार में अंधा होके अपन परिवार के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करनी। हमके माफ कर दी माई, माफ कर दी। मानव, तू यहाँ? हाँ माई, सिलवा के शादी मौसी मानव से करा दे बड़ी। लक्ष्मी बहन के ये उपकार हम कैसे चुकाएं? लक्ष्मी बहन हमार परिवार खातिर अपन कितना अपमान कर रही है। हे भोलेनाथ, बड़ा खुशी के बात बा। हे माई, दादी, तोर नाती हो। आ बाबू, एक चिराग खातिर हम तोहरा के कहा खाना कहनी है बहू। बांझ कुलच्छनी निर्बंसी पता ना कहा कहनी है तोहरा के। आज हमरा के हमार पूरा परिवार मिल गई। ये परिवार के कभी दूर मत करी है भगवान। देखी, भगवान कुंडली में सब कुछ लिख देले बा। कब केकरा संगे मिले के बा और कब केकरा संगे बिछुड़े के बा। यही से कहल जाला कि ऊपर वाला के घर में देर बा मगर अंधेर कभो ना होला। पुजारी जी, रहुआ ठीक कहत है, लेकिन जब देर होला ना तो मन में बहुत दर्द होला और हमनी के गलत कदम उठा ले ली। महाराज, आज पूरा परिवार हमरा के मिल गई।
आज हमनी खातिर बहुत खुशी के दिन बाटे। हाँ सूरज, आज तो हर सारा परिवार मिल गइल, देख के बड़ा खुशी हो रहल बा। तू सब खुश रह, स्वस्थ रह, बस ये भोलेनाथ से प्रार्थना बा। जय भोलेनाथ। रूपवा तुहर सलोना लागेला चांद जैसन। दिल के ना कुछ खबर बा लागल ई रोग कैसन। कारी के सिया लगे बदरिया होठवा गुलाब जैसन। Cain